Yes. Hi students. In previous period we discussed about the pollination process, basic pollination process divided into two: self pollination and cross pollination. Okay. If one plant is involved only in the process of pollination, then it is called as self pollination. And if two plants are involved, then it is called as the cross pollination. If one plant is involved, yes, self pollination. If two plants are involved, cross pollination. Then we discussed about the subtypes. Okay, two subtypes of self pollination: autogamy and geitonogamy. Autogamy and geitonogamy. Autogamy, one plant, one flower. Geitonogamy, one plant, two flowers. Then about the two subtypes of cross pollination: xenogamy and hybridization. Xenogamy, two plants, two flowers, but belonging to the same species. And hybridization, again, two plants, two flowers, but belonging to the different species. Okay, now let's see about the examples of each. Okay, autogamy example, yes, pea or mirabilis. Geitonogamy example, maize. Xenogamy, papaya. And the hybridization, cotton. So all that was, yes, about yesterday. And now our today's subtopic is agencies of pollination. Agencies of pollination. Now let's discuss about the definition of pollinating agents. So which particular entities are called as pollinating agents? The agents which transfer pollen grains from anther to the stigma. Yes, agents which transfer pollen grains from the anther to the stigma are called as pollinating agents and or agencies of pollination. Now, there are two types of pollination agencies, or there are two types of pollinating agents. एक अबायोटिक एजेंट्स, दूसरे बायोटिक एजेंट्स. अबायोटिक एजेंट्स जो है, अबायोटिक एजेंट्स यानी कि यस नॉन लिविंग एजेंट्स. अबायोटिक एजेंट्स यस नॉन लिविंग एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स यानी लिविंग एजेंट्स. यस, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग एजेंट्स और बायोटिक यानी लिविंग एजेंट्स. बायोटिक एजेंट्स जो होते हैं वो आमतौर पे कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स. सो नाउ यस, about the subtopics of abiotic agents, subtypes of, we can say, abiotic agents. There are two types of abiotic agents: wind and water. Wind and water. And pollination carried out through these agencies, that is wind pollination and water pollination. Now these are the English terms, but what about the scientific or Latin terms? Scientific term for wind pollination is anemophily. Scientific term for wind pollination is anemophily. Note here, anemophily is there. ANI नहीं है. ANI का मतलब एनिमल होता है, वो बायोटिक कैटेगरी में चला जाएगा. यहाँ ANI नहीं है बल्कि ANE है. एनेमॉस. एनेमॉस यानी विंड, वारा, हवा म्हणतो आपण त्याला. तो हा जो एजंट आहे विंड पॉलिनेशन मध्ये, विंड एजंट जो आहे तर त्याला एनिमॉस म्हणतात लॅटिन मध्ये. आणि जी पॉलिनेशन प्रोसेस विंड थ्रू कॅरी होते त्याला म्हणतात एनेमोफिली. द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन विच इज कैरिड थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड इज कॉल्ड एज द एनेमोफिली. अब ये फिली वर्ड कहाँ से आया? हर जगह पे लगा हुआ है, हाइड्रोफिली, एंटामोफिली, ऑर्निथोफिली, चिरेप्टरोफिली. तो ये फिली वर्ड कहाँ से आया? तो फिलिक का मतलब होता है लविंग. ये लैटिन वर्ड से बच्चों. फिलिक का मतलब होता है लविंग और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग. इसीलिए हम डर के लिए फोबिया वर्ड यूज करते हैं. इसलिए हम डर के लिए फोबिया वर्ड यूज करते हैं. तो फिलिक यानी लविंग, यानी कि एनेमोफिली यानी वो पॉलिनेशन जो हवा से अपना काम कराना पसंद करता है, वो पॉलिनेशन टाइप. तो इस प्रकार से विंड पॉलिनेशन, द टर्म इज एनेमोफिली, क्योंकि एनेमॉस का मतलब होता है लैटिन भाषा में, यस, लैटिन भाषा का शब्द है ये. एनेमॉस का मतलब होता है विंड. उसके बाद हाइड्रोस. हाइड्रोस यानी वाटर. हाइड्रो यानी, हाइड्रो शब्द पानी के लिए यूज होता है, सब जानते हैं, है ना. सो हाइड्रोफिली यानी वाटर पॉलिनेशन. वाटर पॉलिनेशन. ना ये जो एनेमोफिली है यानी कि विंड पॉलिनेशन, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले कि व्हाट इज एनेमोफिली. सी, व्हेन पोलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय विंड एजेंसी, then the pollination is called as anemophily. See, what's the definition?
when pollen grains are carried by the agency wind, then the pollination is called as anemophily. क्या कहेंगे पॉलिनेशन को? एनेमोफिली कहेंगे। फिर से बता रही हूँ, ANE है, ANI नहीं है, एनेमोफिली। एंड सच फ्लावर्स, yes, which carry out their pollination with the help of agent wind, they are called as the, or they are described as, yes, anemophilous flowers. ऐसे फ्लावर्स जो अपना पॉलिनेशन हवा से कराना पसंद करते हैं उन्हें कहते हैं एनेमोफिलस फ्लावर्स। तो दोनों टर्म क्लियर हुए? यस, the pollen grains if are carried out with the help of agency wind, then the pollination is called as anemophily. And the flowers which carry out their yes, pollination through the use of agency wind, then such flowers are described as anemophilous flowers. अब थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ मूव होते हैं। एनेमोफिलस फ्लावर्स या एनेमोफिलस प्लांट्स कौन से हैं? ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो अपना पॉलिनेशन हवा से कराना पसंद करते हैं? पहला प्लांट है ज्वार, सबको मालूम है, ज्वारी म्हणतो मराठीमध्ये। दूसरा है मेज यानी मकई, मका, और तीसरा है ग्रासेस यानी कि घास, अलग अलग प्रकार के घास, और दूसरा जो है वो गवत म्हणतो आपण मराठीमध्ये। तो these three plants are the examples of anemophily, ज्वार, maize and all the kinds of, yes, grasses. Okay, so all the kinds of grasses. Now, yes, what modifications are necessary, or which particular characteristic features are necessary, yes, in any flower or in any plant to carry out the pollination with the help of wind. इसका मतलब क्या हुआ कि pollination करना या कराना ये प्लांट की जरूरत है, क्योंकि हवा तो अबायोटिक एजेंट है, हवा को नहीं पता रहता है कि वो कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है ना, तो वो अबायोटिक एजेंट है, उसे नहीं पता होता है कि मैं पॉलिनेशन का हिस्सा भी बन रही हूँ या मैं पॉलिनेशन जैसी इंपॉर्टेंट प्रोसेस में, है ना, इन्वॉल्व हूँ। हवा तो अबायोटिक एजेंट है, उसे कोई लेना देना नहीं, वो अपने हिसाब से आएगी, अपने हिसाब से जाएगी। अब फिर रोल किसका रहेगा प्रोसेस में? बायोटिक जो पार्ट है उसका, यानी कि प्लांट का या फिर उसके ऊपर लगे हुए फ्लावर्स का। अब प्लांट को चाहिए कि वो अपने आप को हवा के हिसाब से एडजस्ट करे, फूल को चाहिए, फ्लावर को चाहिए कि वो अपने आप को हवा के एजेंसी के हिसाब से एडजस्ट करे, क्योंकि हवा तो एडजस्ट करने वाली है नहीं, वो अबायोटिक एजेंट है ना। तो फिर विंड पॉलिनेशन के लिए एडजस्टमेंट किसको करने पड़ेंगे? प्लांट को करने पड़ेंगे, फ्लावर्स को करने पड़ेंगे। फ्लावर्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स है अलग अलग प्रकार के, उन्हें एडाप्टेशंस दिखाने होंगे, अपने अंदर कुछ पर्टिकुलर चेंजेस करने होंगे। किसके हिसाब से? ऑफ कोर्स हवा के हिसाब से, विंड के हिसाब से। अब वन बाय वन देखते हैं कि प्लांट या फ्लावर अपने आप को विंड पॉलिनेशन से एडजस्ट करने के लिए, विंड पॉलिनेशन के लिए एडॉप्ट करने के लिए कौन कौन से चेंजेस अपने आप में करते हैं या करने चाहिए। ओके, अब पहला पॉइंट है यहाँ हमारा, फ्लावर्स आर कलरलेस, स्मॉल एंड विदाउट फ्रेग्रेंस। फूलों की जो खुशबू होती है ना, फूलों का जो स्मेल होता है, फूलों की जो खुशबू होती है, उसके लिए खास वर्ड है इंग्लिश में, वो है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस यानी स्वीट स्मेल। ओके, फ्रेग्रेंस यानी स्वीट स्मेल। अब पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्लावर्स आर कलरलेस, स्मॉल एंड विदाउट फ्रेग्रेंस। अब आप बोलोगे मैडम कलरफुल भी हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि कलर प्रोड्यूस करना, स्मेल प्रोड्यूस करना और फ्लावर को बड़े साइज में रखना, इन सब चीजों के लिए मटेरियल लगता है और एनर्जी भी लगती है। और जिन चीजों का कोई यूज ही नहीं है, ओके, जिन चीजों का कोई यूज ही नहीं है, वो उसमें नेचर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। जैसे कि हवा को रंग समझ में आने वाले नहीं है। ओके, हवा को रंग समझ में आने वाले नहीं है, हवा को जो है वो फ्रेग्रेंस समझ में आने वाला है नहीं, है ना। भले ही हवा के थ्रू फ्रेग्रेंस फैलता है, खुशबू फैलती है, लेकिन हवा को समझ में नहीं आ रहा, खुद को नहीं समझता है कि वो खुशबू फैलाती है। ओके, तो फिर हवा को खुशबू से कोई मतलब नहीं, हवा को कलर से कोई मतलब नहीं, और कलर प्रोड्यूस करना और खुशबू प्रोड्यूस करना यानी कि फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करना, ये केमिकल रिएक्शंस है बच्चों। और जहां बात केमिकल रिएक्शंस की होती है, वहां मटेरियल और एनर्जी, रॉ मटेरियल और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए एनर्जी, ये दोनों चीजें लगती है नेचर को। तो जिन चीजों का कोई फायदा ही नहीं है,
कलर का विंड पॉलिनेशन में कोई रोल नहीं है, स्मेल का विंड पॉलिनेशन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि एजेंट को इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो व्हाई टू वेस्ट एनर्जी एंड मटेरियल, है ना, इन प्रोड्यूसिंग दिस थिंग्स, ऐसा नेचर सोचता है। और इसीलिए जो प्लांट्स अपना पॉलिनेशन, है ना, फुल्ली हवा के थ्रू कराना चाहते हैं, वो कलर और स्मेल प्रोड्यूस करने में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट और मटेरियल भी वेस्ट नहीं करते हैं। सो जनरली yes, anemophilous flowers are colorless and without fragrance. Now one word is remained here, small in size. Okay, so size छोटा क्यों रखना है? क्योंकि हवा से हवा जो है वो कम ज्यादा स्पीड से बहती है, और उससे क्या होता है, हवा जब कम ज्यादा स्पीड से बहती है तो उससे फ्लावर जितना बड़ा उसको डैमेज भी उतना ही ज्यादा हो सकता है। इसलिए छोटे फूल जो है वो भी अगर इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज हो तो उन्हें कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स जो है वो अपने फ्लावर्स की साइज कैसे रखते हैं, छोटी रखते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स वो जो होते हैं वो अपने प्लांट की फ्लावर की साइज जो है वो कैसे रखते हैं, छोटी रखते हैं। सो ये पहला पॉइंट पूरी तरह से कवर हो गया। यस, फ्लावर्स आर कलरलेस, है ना, फ्लावर्स आर विदाउट फ्रेग्रेंस, फ्लावर्स आर स्मॉल इन साइज। ओके, देन यस, पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? पोलन ग्रेन्स स्मॉल होने चाहिए, छोटे। जब फ्लावर्स ही छोटे हैं तो नेचुरली उनके पोलन ग्रेन्स जो है उनसे बनने वाले वो भी कैसे होंगे, छोटे साइज के होंगे। सो पोलन ग्रेन्स शुड बी स्मॉल। दूसरा शब्द है स्मूथ, है ना। अब ये स्मूथ शब्द क्या है? देखो, दो प्रकार के पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूं आपको। ये है स्मूथ वॉल्ड पोलन ग्रेन, ये है स्मूथ वॉल्ड पोलन ग्रेन, और दूसरा जो है वो रफ वॉल्ड पोलन ग्रेन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, या स्पाइनी भी कह सकते हो इसको आप। तो ये होता है दूसरा वाला, ये स्पाइनी वॉल वाला होता है। ये स्पाइनी वॉल वाला पोलन ग्रेन है। तो ये स्मूथ पोलन ग्रेन है, और ये रफ या फिर स्पाइनी पोलन ग्रेन है। स्पाइनी तो जिसके ऊपर ऐसे स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं है, है ना, जिन पोलन ग्रेन्स के ऊपर ये स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं है, है ना, उन पोलन ग्रेन्स को जिसकी आउटर वॉल स्मूथ है, इनर तो दोनों की स्मूथ है सॉरी, बट जिनकी आउटर वॉल स्मूथ है ना, जिनके आउटर वॉल के ऊपर ऐसे स्पाइन्स नहीं है ना, वो है स्मूथ पोलन ग्रेन्स, और जिनके ऊपर ऐसे स्पाइन्स है वो है रफ या फिर स्पाइनी पोलन ग्रेन्स। तो विंड पॉलिनेशन में इन स्पाइन्स के वजह से ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है उनके मूवमेंट में। कहीं भी गलत जगह पे चिपक गए तो वहां से दोबारा उनको उठाना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो स्पाइन्स जो है, स्पाइन्स अगर फंस के रह गए किसी जगह में तो फिर उनको फिर से ऊपर उठाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विंड पॉलिनेशन थ्रू पोलन ग्रेन एक ही झटके में प्रॉपर स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाए जरूरी नहीं है। इसलिए पोलन ग्रेन की जो आउटर वॉल है वो कैसे रखनी है, स्मूथ रखनी है, ताकि गलत जगह पे पोलन ग्रेन फंस के ना रह जाए और उन्हें 2 बार 3 बार 4 बार भी उठाने का काम पड़ा प्रॉपर साइड पे पहुंचाने के लिए तो वो किया जा सके। इसलिए पोलन ग्रेन्स आर स्मॉल, छोटे चाहिए साइज में, और स्मूथ वॉल्ड चाहिए, ड्राई चाहिए। अब ये ड्राई क्यों चाहिए? क्योंकि अगर वो स्टिकी रहे तो गलत जगह पे गिरने के बाद वहीं पे चिपक के रह जाएंगे, फिर से वही काम कि दोबारा उसको नहीं उठा पाएंगे, वेस्ट हो जाएगा पोलन ग्रेन। इसलिए पोलन ग्रेन्स कैसे चाहिए, ड्राई चाहिए। तो स्मॉल चाहिए, स्मूथ चाहिए, ड्राई चाहिए और लाइट वेट चाहिए। अब लाइट वेट क्यों चाहिए? स्मॉल चाहिए पर लाइट वेट क्यों चाहिए? लाइट वेट इसलिए चाहिए क्योंकि हवा का स्पीड कभी कभी बहुत स्लो रहता है, ऐसे में भी हल्की सी हवा के झोंके के साथ भी पोलन ग्रेन का यहाँ से वहां ट्रांसफर होना एक्सपेक्टेड है। इसलिए पोलन ग्रेन्स कैसे चाहिए, लाइट वेट चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी चारों फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे कि छोटे क्यों चाहिए, स्मूथ वॉल्ड क्यों चाहिए, ड्राई क्यों चाहिए और लाइट वेट भी क्यों चाहिए। उसके बाद अब और एक चीज है पोलन ग्रेन्स के कंसर्न में, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, या पोलन ग्रेन शुड गेट प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। अब ये ज्यादा पोलन ग्रेन क्यों मतलब प्रोड्यूस करने हैं? तो अगर 100 की जरूरत है तो 1000 प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, अगर 1000 की जरूरत है तो 1 लाख पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। क्यों? ऐसा इसलिए, है ना, ऐसा इसलिए क्योंकि विंड एजेंसी जो है वो अबायोटिक है ना, वो पर्पसफुली पॉलिनेशन का काम नहीं कर रही है, पॉलिनेशन का काम किया नहीं जा रहा है बल्कि वो हो जा रहा है। और ऐसे में
हम वीट एजेंसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो पोलन ग्रेन्स को प्रॉपर एंथर से उठा के प्रॉपर स्टिग्मा के ऊपर एक ही झटके में जाके डिपॉजिट कर दे। और इसीलिए पोलन ग्रेन्स जो है अपने एंथर से जब निकलेंगे अपने प्लांट में से एंथर से निकलेंगे तो पर्टिकुलर स्टिग्मा के ऊपर वो परफेक्टली जाके पहुंचेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते हैं। चांसेस आर रेयर, चांसेस आर कंपैरेटिवली लेस देन दैट ऑफ द बायोटिक एजेंसी। बायोटिक एजेंसी के कंपैरिजन में अबायोटिक एजेंसी के थ्रू पॉलिनेशन के चांसेस, सक्सेसफुल पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए नेचर सोचता है कि अगर मैं 100 एक सक्सेसफुल पॉलिनेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मुझे 1000 पोलन ग्रेन बनाने पड़ेंगे। जब मैं 1000 भेजूंगा तब जाके 100 सही जगह पे पहुंचेंगे। जब मुझे 1000 पोलन ग्रेन सही जगह पे पहुंचाने हैं तो मैं 1 लाख पोलन ग्रेन बनाऊंगा। जब मैं 1 लाख पोलन ग्रेन बनाऊंगा तो तब जाके कहीं 1000 जगह पे पॉलिनेशन सक्सेसफुल होगा। इसलिए जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। कौन से प्लांट को? एनेमोफिलस प्लांट को। कौन से फ्लावर्स है ये? एनेमोफिलस फ्लावर्स है। उसके बाद का पॉइंट, बोथ एंथर्स एंड स्टिग्मा शुड बी एक्सपोज्ड टू एयर। ये भी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूं कि समझो अगर ये करोला है और अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम रहेंगे। तो अगर इस फ्लावर को अपना पॉलिनेशन विंड के थ्रू कराना है तो इसको अपना एंथर जो है वो ऐसे बाहर निकाल के रखना पड़ेगा, और इसका जो ओवरी स्टाइल के बाद इसका जो स्टिग्मा है उसे भी बाहर निकाल के रखना पड़ेगा, एक्सपोज करके रखना पड़ेगा हवा को। क्योंकि जरूरत हवा की नहीं है कि वो फूल के अंदर जाए, पोलन ग्रेन ले उठा ले और लेके जाए, जैसे कि ये कीड़ा कर सकता है। ऐसे हवा नहीं करेगी, हवा अपनी मर्जी से बहेगी। अगर आप अपने जो एंथर और स्टिग्मा पोर्शन से वो बाहर निकाल के रखते हो तो अगर हवा के साथ पोलन ग्रेन आए हैं तो वो यहाँ चिपक जाएंगे, है ना, यहाँ डिपॉजिट होंगे। और अगर नहीं आए हैं, एंथर फूटा हुआ है और एंथर के सरफेस पे पोलन ग्रेन अगर है तो इसे हवा बाहर दूसरे फ्लावर की तरफ पॉलिनेशन के लिए लेके जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यस, पोलन ग्रेन जो है और स्टिग्मा जो है, पोलन ग्रेन यानी जो एंथर में से निकलते हैं वो एंथर जो है और स्टिग्मा है, ये दोनों पार्ट्स जो है वो उनकी लंबाई पेटल की लंबाई से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि दे मस्ट गेट एक्सपोज टू द एयर। ऐसे स्टेमन्स को जिनकी लेंथ पेटल की लंबाई से ज्यादा होती है ना, इन्हें कहते हैं एक्सर्टेड स्टेमन्स। क्या कहते हैं? एक्सर्टेड स्टेमन्स कहते हैं। और जिनकी लंबाई कंपैरेटिवली पेटल की लंबाई से कम होती है, यानी कि अगर ऐसा रहता, समझो ऐसा रहता, तो इसको कहते हैं इंसर्टेड स्टेमन। एक्सर्टेड स्टेमन और इंसर्टेड स्टेमन। तो यस, both the anthers and stigma should get exposed to the air and then stigma becomes sticky। देखो पोलन ग्रेन कैसे रखने थे? ड्राई। सुनो, पोलन ग्रेन कैसे रखने हैं? ड्राई। लेकिन स्टिग्मा कैसा रखना है? स्टिकी। क्यों भाई स्टिग्मा क्यों स्टिकी रखना है? क्योंकि बड़ी मुश्किल से पोलन ग्रेन आए हैं, क्योंकि विंड पॉलिनेशन में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती, तो बड़ी मुश्किल से पोलन ग्रेन आए हैं, उनका एक बार स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होना यही बहुत लकी चीज है। तो एक बार स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होने के बाद वो वहां से निकल न जाए, इसलिए स्टिग्मा एक स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और उस पे ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। उसके बाद ये स्टिग्मा बिकम स्टिकी, उसके बाद हेयरी और फीदरी टू कैच द पोलन ग्रेन। अब आमतौर पे हमने ये इस प्रकार का स्टिग्मा निकाला है, लेकिन ये स्टिग्मा निकालना सही नहीं है। इस आकार का सही स्टिग्मा कैसा होगा? शेप, ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड वाला स्टिग्मा हुआ जो अभी मैंने निकाला था। अब विंड पॉलिनेटेड प्लांट में देखो स्टिग्मा कैसा है, हेयरी है या फिर फीदरी है। पक्ष्याचं पीस असतं तसा हेयरी और फीदरी। अब हेयरी और फीदरी रखने से क्या होता है? उसका सरफेस एरिया बढ़ता है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से पोलन ग्रेन के कैच होने के, पकड़े जाने के चांसेस भी बढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम ये सिंपल वाला स्टिग्मा अगर यूज करते हैं ऐसा, तो इस पे सरफेस एरिया एकदम कम रहता है। तो कम सरफेस एरिया की वजह से पोलन ग्रेन के कैच किए जाने के चांसेस भी रिड्यूस होते हैं, और यहाँ फीदरी और हेयरी स्टिग्मा होने से पोलन ग्रेन के कैच होने के चांसेस है ना बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद स्टेमन्स आर विथ लॉन्ग फिलामेंट्स एंड वर्साटाइल एंथर। तो ये पहले ही पॉइंट समझा चुकी हूं मैं कि स्टेमन का फिलामेंट अगर लॉन्ग होगा तो ही उसका एंथर जो है वो हवा के लिए बाहर एक्सपोज होगा।
है ना, तो ही हवा सीधे उन एंथर्स और स्टिग्मा के संपर्क में आएगी और पोलन ग्रेन की लेन देन करेगी। इसलिए स्टेमन्स का फिलामेंट जो है वो कैसा चाहिए होता है, पेटल के लंबाई से उसकी लंबाई कैसे चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है, फिलामेंट जो है वो लॉन्ग चाहिए होता है। और एंथर का वर्साटाइल होना यानी क्या कि एंथर शुड बी एबल टू स्विंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। एंथर जो होता है उसने ऐसे स्विंग होना चाहिए, जैसे क्रिकेट का बॉल स्विंग करते हैं हम लेफ्ट में या राइट में, तो वैसे एंथर ने स्विंग होना चाहिए ताकि पोलन ग्रेन्स जो है वो सभी दिशाओं में फैल जाए। तो इसके लिए एंथर का वर्साटाइल होना जरूरी है। तो बच्चों आज हमने एक एजेंसी जो है, एक एजेंसी के पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं। कल हम हाइड्रोफिली लेंगे, हो सकता है बायोटिक एजेंट में से भी कुछ हम ये जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर एडजस्ट हुआ तो हाइड्रोफिली के एक दो पॉइंट अभी भी समझा सकती हूँ। हाँ देखते हैं कि हाइड्रोफिली यानी पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिली यानी पॉलिनेशन बाय वाटर। अब हाइड्रोफिली वाटर भी अबायोटिक एजेंट है और विंड भी अबायोटिक एजेंट है, इसलिए बाकी सब बहुत सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, सेम है। कुछ पानी और हवा में जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसके हिसाब से एक दो पॉइंट्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। पहला, फ्लावर्स आर कलरलेस, यहाँ भी फ्लावर्स कलरलेस थे। फ्लावर्स आर विदाउट फ्रेग्रेंस, यहाँ भी विदाउट फ्रेग्रेंस थे, क्योंकि पानी को भी कलर से और फ्रेग्रेंस से कोई लेना देना नहीं है, बीइंग अ बायोटिक एजेंट। ओके, उसके बाद पोलन ग्रेन्स आर कवर्ड बाय वैक्स, है ना। एक नया कैरेक्टर मिला, एक नया पॉइंट मिला कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, और एक सिंगल सेल्ड चीज को पानी में थोड़ी देर रहने के बाद सड़ने के लिए समय नहीं लगेगा, वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसलिए पानी में जो चीजें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो पार्ट पानी में डूबे हुए रहते हैं, नेचर की कोशिश रहती है कि वो उनके ऊपर वैक्स का कोटिंग कर दे, है ना। जैसे कि कमल के पत्तों के ऊपर होता है वैक्स का कोटिंग, वैसे ही यहाँ पोलन ग्रेन्स के ऊपर वैक्स का कोटिंग रहता है, ताकि पॉलिनेशन सक्सेसफुल होने में अगर 2-3 दिन का समय लगा और इन 2-3 दिनों के पीरियड में अगर उन्हें पानी में रहने की मतलब जरूरत पड़ी, तो उन्हें पोलन ग्रेन्स जो है वो सड़ नहीं जाने चाहिए, इसलिए उनके ऊपर क्या रहता है, वैक्सी कोटिंग रहता है। अब यहाँ दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वेलिस्नेरिया यानी कि उसको रिबन वीड कहते हैं, और हाइड्रिला। इनमें से मैं हाइड्रिला आपको अभी ड्रॉ करके दिखाती हूँ, क्योंकि हम यही बेसिक जब हम 12th में यूज करेंगे, तो 12th में जो है वो हमें इन दोनों प्रकार के पॉलिनेशन को फिर डिटेल में पढ़ना है। अभी ये जो प्लांट में ड्रॉ कर रही हूँ, ये प्लांट जो है ये हाइड्रिला प्लांट है। ये पानी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्लांट है, इसलिए इसके नाम में भी देखो हाइड्रो वर्ड आ गया। ओके, तो दिस इज द हाइड्रिला प्लांट। ये भी मैं आपको कभी लाके दिखाऊंगी। यस, तो ये है हाइड्रिला प्लांट, हाइड्रिला। ओके, तो हाइड्रिला प्लांट है, ये ग्रीन कलर का होता है, पूरा लीव्स उसके बंचेस में अरेंज होते हैं, तो ये हाइड्रिला प्लांट है। और दूसरा प्लांट है वेलिस्नेरिया, जिसको कि रिबन वीड कहते हैं, है ना। ये भी ड्रॉ करके थोड़ा सा दिखाती हूँ बाजू में। रिबन वीड, इसके पत्ते जो होते हैं, लीव्स, वो रिबन के जैसे होते हैं, है ना, इसलिए इसे कहते हैं रिबन वीड। ये रिबन वीड, ये है वेलिस्नेरिया और ये है हाइड्रिला। तो इस प्रकार से आज हमने विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन, ये दोनों अबायोटिक एजेंसीज कंप्लीट की है। आज हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट पीरियड में इनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और फिर हमारे नए जो बायोटिक एजेंट्स हैं 3, इंसेक्ट, बर्ड और बैट, है ना, उनके थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है, उनके लिए टर्म्स क्या है, ये सब हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय देन।